Okay. So, hello students. So, welcome to Dr. Haider Maths classes. So, hello students. So, welcome to Dr. Haider Maths classes. So, before going to the topic, this is a very simple request to you. Those students who did not join my channel still, so you are requested to join my this YouTube channel, okay, and forward to your friends so that you can get the notification for the new exercise on time. Okay. So now let's start exercise 5.4 of chapter number 5. Okay. Chapter number 5, that is based on continuity and differentiability. Exercise 5.4. So in all the previous classes, we have already discussed the quotient rule and the product rule and the formulas. Okay, so now I am coming to the exercise. Question number 1. The first question is e to the power x divided by sine x. This is the question. Okay, so see, the question is in the form of fraction, so we will apply the quotient rule. So let write y is equals to e to the power x upon sine x, and now differentiate with respect to x on both the sides. Differentiate with respect to x on both sides. Okay, so the differentiation of y will be dy by dx, and apply the quotient rule. Sin x यानी कि denominator into derivative of numerator and minus numerator and derivative of denominator and divided by denominator square. Okay, so this is sin x, and derivative of e to the power x will e to the power x remain same, and e to the power x and derivative of sin x cos x and divided by sin square x. So one more step you can write e to the power x, you may take common. So sin x minus cos x upon sin square x, and this is the final answer of this question number 1. Right? Now move to question number 2. And the second question is e to the power sin inverse x. So in the same way, we will write y is equals to the power sin inverse x and differentiate with respect to x on both the sides. So this I am not writing, you will write yourself. So dy by dx is equals to the derivative of this means e to the power sin inverse x and into d by dx of sin inverse x. So the e to the power sin inverse x and the derivative of sin inverse x is root over 1 minus x square, and this is the final answer for this question number 2. Okay. Now the third question is e to the power x cube. E to the power x cube. So we will write y is equals to e to the power x cube and differentiate with respect to x. So dy by dx is equals to e to the power x cube into d by dx of x to the power 3. So finally e to the power x cube and the derivative of x cube is 3x square, and this is the final answer of this question number 3. Okay. Now the next question is question number 4, and this is sine of tan inverse e to the power minus x. Okay, so again we will write in the same manner. Okay, y is equals to sine of tan inverse e raised to minus x, and now differentiate with respect to x. Dy by dx is equals to, first we will differentiate this sine theta. Suppose this is angle theta, so the derivative of sine theta, that is cos theta. So theta will be tan inverse e raised to minus x, and now d by dx of tan inverse e raised to minus x. Okay,
Now cos and tan inverse e raised to minus x, and now we will differentiate tan inverse x. So the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So 1 upon 1 plus x e to the power minus 2x, and now the derivative of e to d by dx of e raised to minus x. सो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है इसलिए माइनस वन भी आ जाएगा. सो माइनस कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. Okay, now the next question, got it? Next question, that is question number 5. And the fifth question is log cos e to the power x. Okay, so we will write y is equals to log of cos e to the power x. Now differentiate with respect to x on both the sides, with respect to x on both sides. Okay, so the different derivative of y means dy by dx, and the derivative of log x means 1 upon cos e to the power x and into d by dx of cos e to the power x. So 1 upon cos e to the power x, and the derivative of cos theta, that is minus sin theta sin e to the power x, and the rest is d by dx of e to the power x. So finally we can write sin by cos tan. So minus tan theta means x raised tan e to the power x. Okay, and d by dx of e to the power x will remain same. So this is the final answer of this question. Okay, now the next one is question number 6, and the sixth question is e to the power x plus e to the power x square and plus so on e to the power x to the power 5. Okay, so we will write y is equals to e to the power x plus e to the power x square and plus e to the power x upon 5. So again differentiate with respect to x on both the sides. So dy by dx is equals to d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power x square and so on, and plus d by dx of e raised to x to the power 5, and d by derivative of e to the power x, that is e to the power x, and plus e to the power x square, and the derivative of x square 2x. So we will write 2x e to the power x square, and similarly here x to the power 5 means 5x to the power 4. Okay, and e raised to power x to the power 5, and this is the result of this question number 6. Okay, now the seventh question, question number 7, that is root over e raised to root x. This is the question. Okay, and now we will rewrite this question. Y is equals to root over e to the power root x. So differentiate with respect to x on both the sides. So dy by dx is equals to, पहले इस रूट का कर देंगे, तो 1 upon twice of root e raised to root x, and now d by dx of e to the power root x. So this is 1 upon twice e raised to root x and d by dx of e to the power x, that is e to the power root x, and finally d by dx of root x. So क्या हो गया आपका 1 upon 2 e to the power root x. Okay, and into e to the power root x, and this is 1 upon twice of root x. So finally we can write e to the power root x, and 2 2s are 4, and दोनों का order same है, इसलिए we can multiply x into e to the power root x, and here we will leave, and the process is solution is completed. Okay, now the next question is question number 8, and the 8th question is log of log x. This is the question. Okay, so for this we'll write
y is equals to or fx is equals to log x. तो differentiate with respect to x on both the sides, dy by dx. पहले इस log का करेंगे तो 1 upon log x और बच गया आपका d by dx of log x. So finally log x will x, and this is the result of this question number. Okay. Now the question number 9, and the ninth question is cos x upon log x. Okay. So here again we will apply the quotient rule, है ना? Quotient rule लगाएंगे तो y is equals to, we will write cos x upon log x. So dy by dx is equals to denominator log x into derivative of numerator cos x and minus cos x and derivative of denominator and divided by denominator square. So log x whole square. So finally log x into derivative of cos x, that is minus sin x, and minus cos x and derivative of log x 1 by x upon log x whole square, or we can take the LCM. So after the LCM it will be finally x log x with minus sin x and minus cos x, और ये LCM आपका नीचे आएगा x into log x whole square, and here we will leave it. Okay. Now the next question is question number 10, and the 10th question is cos of log x plus e to the power x, log x plus e to the power x. So we will write y is equals to cos of log x plus e to the power x. Now differentiate with respect to x on both the sides. Okay. So the derivative of y, that is dy by dx. पहले cos और इसको थीटा मान लें तो cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, एंड थीटा इज log x plus e to the power x into d by dx of log x and plus e to the power x. So this is minus sin log x plus e to the power x, and derivative of log x 1 by x and plus derivative of e to the power x, e to the power x. So in this way we can leave up to here. Otherwise there is no need of taking the LCM and all these things. So this is the final answer of this question. Okay. Now the next exercise is, that is based on logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation, है ना? तो इस पे जाने से पहले हम लोग लॉग के 3 बेसिक्स रूल्स पढ़ लेंगे, है ना? क्या रूल है कि log of a into b can be written as log a plus log b, and log of a divided by b can be written as log a minus log b, and log of a to the power b, this can be written as b times log. Okay, so these are the 3 basics rule of this logarithmic differentiation, because we have to apply this logarithmic differentiation, है ना? In the logarithmic differentiation इन तीनों रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट? तो इसी के साथ मैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 शुरू करने जा रहा हूं. Exercise 5.5, and the very first question is cos x into cos 2x into cos 3x, cos x into cos 2x into cos 3x. यानी कि अब इसमें हम लोग पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे. लॉग की प्रॉपर्टी लगाने से आसान हो सकता है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाई के cos
cos x into cos 2x and derivative of cos 3x and plus cos x into cos 3x derivative of cos 2x and plus cos 2x into cos 3x derivative of cos x। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन log लगा के कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। लेट y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x। सो टेकिंग log on both the sides, पहले log ले लेंगे दोनों तरफ। तो log ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन में है, तो log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, राइट। पहले दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, log ले लिया, है ना। चलो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन इसलिए हो गया कि रूल क्या था हमारा, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ऑन दिस प्रॉपर्टी हमने इसको लिख दिया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। एंड नाउ डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, okay। तो log y means 1 upon y and y का हो गया dy by dx, और ये हो गया 1 by cos x log का, और डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1 upon cos 2x and the derivative of cos theta minus sin 2x into 2x का डेरिवेटिव 2 and plus 1 by cos 3x एंड cos थीटा का हो गया माइनस sin 3x, और 3x का हो गया इंटू 3, राइट। अब इस y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y टाइम्स माइनस साइन बाई cos 10x and this is plus minus minus and 2 tan 2x, okay, sin theta upon cos theta, and plus minus minus 3 tan theta 3 tan 3x, okay, and put the value whatever the value of y is, this is the value of y, so we will put the value of y. So finally it is cos x into cos 2x into cos 3x and into minus tan x minus 2 tan 2x and minus 3 tan 3x, okay, and this is the final answer of this, okay, got it, okay। Now move to next question, that is question number 2, and this is the very important question for your board point of view, right, because ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें log की तीनों प्रॉपर्टी लगेगी, and the question is root over x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, this is the question, okay। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख दें कि y इज इक्वल्स टू, अब इस पावर रूट को रेडिकल साइन को हटा करके हम लोग पावर के फॉर्म में दे दें, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 and whole to the power 1 by 2। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं by taking log on both the sides, so log y is equals to, और log की प्रॉपर्टी लगा दे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि log of a to the power b, है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि log of a to the power b is equals to b times log a। तो ये पावर पहले आ गया 1 by 2 हो गया, ठीक है भाई, इनटू अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, और यहाँ पे आपका माइनस साइन हो गया डिवीजन के लिए, और ये हो गया ब्रैकेट लगा देते हैं एक कि log ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस log ऑफ x माइनस 4 एंड प्लस log ऑफ x minus 5, okay, and now start differentiation with respect to x on both the sides, so 1 upon y and dy by dx is equals to 1 by 2, log का हो जाएगा 1 upon x minus 1 और x का 1 और 1 का 0 and plus 1 upon x minus 2, again this is 1 and 0, and minus 1 upon x minus 3, same x 1 3 का 0, और यहाँ पे माइनस साइन है तो दिस साइन विल चेंज 1 अपॉन x माइनस 4, ओके, एंड माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन का हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, सिर्फ y की वैल्यू इधर y को ट्रांसफर करके और y की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y टाइम्स 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2
minus 1 upon x minus 3, 1 upon x minus 4, minus 1 upon x minus 5, and the last put the value of y. So this is the value of y. Either you may write in this form or you may write in this form. So this is 1 by 2 into root over of x minus 1, x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. This is the value of y, and this remaining result 1 upon x minus 1, 1 minus 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 3, minus 1 upon x minus 4, and minus 1 upon x minus 5, and this is the final answer of this question. Okay, got it? Now move to next question, that is question number 3. Question number 3, and the third question is log x to the power cos x. Okay, so again take y is equals to log x whole to the power cos x. Now taking log on both the sides, so log y is equals to cos x into log of log x, है ना? क्या प्रॉपर्टी लगा दी? log of a to the power b, that is b times log a, cos x log of log x. And now apply the product rule here. So differentiate 1 upon y with respect to x, dy by dx is equals to cos x into d by dx of log x, okay, and plus log of log x into d by dx of cos x. So this is cos x, and this log means 1 upon log x. फिर इस log x का कर देंगे तो 1 by x and plus log of log x and cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. ओके, अब इस y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dy by dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स, ये कितना हो गया आपका cos x अपॉन x log x, है ना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज sin x into log of log x. Okay, this is the, and now put the value of y, and the value of y is log x whole to the power cos x, and whatever the value is coming cos x upon x log x, we will write the same, and minus sin x into log of log x, and this is the final result of this question. Okay, got it? Now the next question is question number 4th. तो फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन सेज कि x टू दी पावर x माइनस टू दी पावर साइन x. अब जब बीच में हमारे पास प्लस या माइनस पे दो फंक्शन अलग अलग आ जाए, तो इसका सिंपल मेथड क्या है, अगर हम एक साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर लॉग लेने में भी प्रॉब्लम आएगी आपको, और कैलकुलेशन में गलती होने की चांसेस हैं. तो इसलिए इसको हम लोग क्या करें कि लेट y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग u सपोज कर लें और इसको v सपोज कर लें. ठीक है, कि x टू द पावर x इज इक्वल्स टू u और 2 टू द पावर sin x इक्वल्स टू v, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. यहीं डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो y का हो गया आपका dy बाई dx, और u का हो जाएगा du बाई dx, और v का हो गया dv बाई dx, एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1. अब एक एक करके डिफरेंशिएशन कर लीजिए कि नाउ u इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू x log x हो जाएगा. नाउ 1 बाई u एंड du बाई dx, this is apply the product rule, x into derivative of log x 1 by x and plus log x and the derivative of x 1, so this will be cancelled. So the value of du by dx is equals to times 1 plus log x, and now put the value of u. The value of u is x raised to x into 1 plus log x. ठीक है, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी du by dx की. अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि v इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर साइन x. अब यहाँ पे लॉग ले भी सकते हैं और लॉग नहीं भी ले सकते हैं. हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें कि चूंकि डेरिवेटिव ऑफ हमने क्या पढ़ा है कि
by dx of a to the power x is equals to a to the power x log a। तो ये लगा करके हम लोग कर देते हैं। सो dv by dx is equals to 2 to the power sin x into log 2। ओके, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। तो अब ये दोनों वैल्यू फर्स्ट में जाके रख दें। सो फ्रॉम फर्स्ट, ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और du बाई डी एक्स की क्या वैल्यू निकाली, x टू दी पावर x टू 1 प्लस लॉग x, ओके, एंड माइनस dv बाई डी एक्स की क्या वैल्यू निकाली, 2 रेस टू साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस question. Okay, got it? Okay, now move to next question, that is question number 5, the fifth question. And the fifth question is x plus 3 whole to the power 2 into x plus 4 whole to the power 3 into x plus 5 whole to the power 4. Okay, तो इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं हम लोग कि लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। नाउ टेकिंग log on both the sides, so log y is equals to twice of log x plus 3, मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसलिए प्लस आ जाएगा, 3 टाइम्स log of x plus 4 एंड प्लस 4 टाइम्स log of x plus 5। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, है ना, लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें। तो log y हो गया आपका 1 अपॉन y, और y के लिए dy बाई डी एक्स, और 2 log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो गया और 3 का 0 हो गया, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ओके, ये log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो log ऑफ x प्लस 4 1 अपॉन एक्स प्लस 4 हो गया, और x का 1 और 4 का 0, एंड प्लस 4 टाइम्स 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y टाइम्स एंड 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, और अब y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू क्या है कि x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू दी पावर 4, और इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, हमारा काम हो गया, लेकिन जब आप पीछे से आंसर मिलाओगे तो आंसर में वेरिएशन आएगा। चूंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन है तो हम इसका एलसीएम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो we may write x plus 3 whole square and x plus 4 whole cube and x plus 5 whole to the power 4, and the LCM will be x plus 3 into x plus 4 into x plus 5. This will be the LCM. अब LCM को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एंड प्लस दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स प्लस 4 कैंसिल हो गया आपका, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एंड प्लस 4 टाइम्स एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 पावर बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपका 2 पावर बच गया, ये कैंसिल हो गया तो ये आपका 3 पावर बच गया। तो फाइनली एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल टू दी पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x एंड प्लस 5 4 ज़ा 20, ओके, एंड प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 5 और 3 8x एंड प्लस 15 एंड प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 4 3 ज़ा 12। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, चूंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल टू दी पावर 3 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें भाई,
So 2x square plus 18x and plus 40 and 3x square plus 24x and plus 45 and plus 4x square plus 28x and plus 48. Okay, now last step, we will simplify this one. So x plus 3 into x plus 4 whole square into x plus 5 whole to the power 3 and 2x square plus 3x square plus 4x square, 4 3 7 2 9x square. Okay, 18x और 24x that is 42 और 42 plus 28 कितना हो जाएगा आपका 70. कितना हो गया आपका, देखिए 18 plus 40, सॉरी 18 plus 24, 18 plus 24 and plus 28. तो 8 8 16 4 20, 2 2 4 5 और 2 7, 70. So this is 70x और 40 plus 45 85 and 85 and plus 48 8 5 13 12 1 13 है ना. तो ये हो गया plus 113. So this is the final answer of this. Okay. Now, the next question is question number 6. This sixth question is again important question. This question is already asked in CBSE examination many times. Okay. So the question is x plus 1 by x whole to the power x whole to the power x and plus x to the power 1 plus 1 by, this is the question. Okay. तो अगेन इसमें u और v लेकर के चलेंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लिया. तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू u बाई dx प्लस dv बाई dx, है ना. तो u मान लिया. अब एक एक करके सॉल्व करते हैं कि u इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई x होल टू द पावर x, टेकिंग log on both the sides. log u is equals to x and log of x plus 1 बाई एक्स. प्रोडक्ट टूल यहाँ लगेगा आपका. तो 1 बाई यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. प्रोडक्ट टूल लगा दिया. चलिए x इंटू डेरिवेटिव करें भाई. इस log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स और इस x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके, ध्यान से. एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया तो log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. ओके, अब इनको हम लोग LCM लेकर के सिंप्लीफाई कर लें तो x LCM हो जाएगा. LCM ऊपर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1. और उसी तरह से यहाँ पर भी LCM ले लीजिए आप. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स. तो दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल. अब 1 बाई यू है, यू को ट्रांसफर कर दीजिए. तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स. और अब u की वैल्यू रख देते हैं. तो u की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स. तो ये एक पार्ट का हमारा सॉल्यूशन आ गया. डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई. अब इन द सेम वे हम लोग v निकाल लेते हैं कि v इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 plus 1 by x, taking log on both the sides. So log v is equals to 1 plus 1 by x into log x. ठीक है, प्रोडक्ट टूल यहाँ भी लगा दूं मैं डायरेक्ट. तो 1 by v and dv by dx is equals to, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 1 plus 1 by x और log x का हो गया 1 by x और log x इंटू इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 1 का 0 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें
तो हम लोग क्या लिख दें इसको, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/x² कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। 1/x² कॉमन आ गया तो x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स हो गया। अब इस v को इधर ले आते हैं तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v टाइम्स, है ना। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी फॉर्म में रहने दीजिए, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ छोड़ देते हैं, तो v टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू डाल देते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1/x और x प्लस 1/x स्क्वायर एंड माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ u/dx की वैल्यू और dx की वैल्यू दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। ये du/dx है, तो फ्रॉम फर्स्ट y/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx की वैल्यू क्या आ गई थी, x प्लस 1/x होल टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x। ये तो वैल्यू हो गई du/dx की, बीच में प्लस साइन है तो dv/dx की वैल्यू डाल दीजिए प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं बताता रहूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनको प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड द 7th क्वेश्चन इज log x to the power x plus x to the power log x, x to the power log x. This is the question, log x to the power x plus x to the power log x. तो इसको लिख दिया गया y is equals to v मेथड ले लेते हैं, this is u plus v, and now differentiate with respect to x on both sides, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं कि u इज इक्वल्स टू log x दी पावर x, taking log on both the sides, so log u is equals to x log of log x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दें तो log u का 1/u एंड du बाई टी एक्स, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, x इंटू इस log का हो गया 1 अपॉन log x, और इस log x का हो गया 1/x, एंड प्लस log ऑफ log x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u टाइम्स क्या हो गया भाई, 1/log x एंड प्लस log ऑफ log x। ओके, गॉट इट, एंड u की वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो गया, log x होल टू दी पावर x, और 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ओके, यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या इसका एलसीएम ले ले, चूंकि log s बेस है आपका तो पावर चला जाएगा ऊपर माइनस में, तो इसको हम लोग लिख दें log x, चूंकि जब आप बुक का आंसर कंपेयर करोगे तो बुक का आंसर इस फॉर्म में दे रखा है, log x एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, और इसका पावर 1 है और इसका पावर x है, तो फाइनली इसको लिख दिया log x टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x into log of log x। okay, this is the value of du by dx। इसी तरह से हम लोग v निकाल लेते हैं कि v is equals to x to the power log x, so taking log on both the sides, so log v is equals to log x into log of x, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 1/v एंड dv by dx, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं भाई, log x इंटू इस log x का 1/x और प्लस log x, और ये भी 1/x,
तो ये हो गया dv बाई dx इज इक्वल्स टू v टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x, तो हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं ना, ये 2 log x अपॉन x, राइट। और v की वैल्यू डाल दीजिए, x log x टू द पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x, ओके। और इस x पावर को ऊपर ले लीजिए आप, तो x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x, okay. So this is the value of dv by dx. So from result number 1, the finally dy by dx is equals to log x whole to the power x minus 1 into 1 plus log x into log of log x, ओके। ये तो वैल्यू हो गई du by dx की, और प्लस dv by dx की वैल्यू हो गई x टू द पावर log x minus 1 into 2 log x, and this is the final answer of this question number 7. Okay, got it? Now come to next question, that is question number 8. And the 8th question is sin x whole to the power x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। इसको भी हम लोग u और v लगा देते हैं कि y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, पुट इट रिजल्ट नंबर 1, एंड नाउ टेक u इज इक्वल्स टू साइन x होल टू द पावर x, द क्वेश्चन साइन x टू द पावर x, हाँ। So taking log on both the sides, so log u is equals to x log of sin x, okay. So 1 by u and du by dx is equals to x into प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए, log x का हो गया 1 अपॉन sin x और sin x का हो गया cos x, एंड प्लस log sin x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो दिस इज u by dx is equals to u टाइम्स, और इसको लिख दिया cos बाई साइन कॉट x एंड प्लस log साइन x, और अब u की वैल्यू डाल देते हैं भाई, तो u की वैल्यू है साइन x होल टू द पावर x इंटू x कॉट x प्लस log x साइन x, है ना, ओके। अब v को सॉल्व कर लीजिए, तो v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स, डायरेक्ट कर लीजिए, लॉग लगाने से अच्छा है ना। साइन इनवर्स की डेरिवेटिव लगा देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 1 minus x square, not plus, sorry. So this is sin inverse d by dx of sin inverse x is equals to 1 upon root 1 minus x square, ये लगा देते हैं, ये हो गया dv by dx is equals to साइन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का हो गया 1 बाई रूट एक्स, तो सेम ऑर्डर में है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। ये वैल्यू आ गई डी वी बाई डी एक्स की, तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 फाइनली y बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया साइन x टू दी पावर x इंटू एक्स कॉट x एंड प्लस log x साइन x, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट x इंटू 1 माइनस x, और द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 9 को भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, 9th क्वेश्चन, ओके। अगेन ये क्वेश्चन आपका हम लोग इसको
इंपॉर्टेंट में डालते हैं, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 9, 10th, 11th आर इंपॉर्टेंट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज x टू द पावर sin x एंड प्लस sin x टू द पावर cos x. ये सब में हम लोग जहां भी पावर है और बीच में प्लस या माइनस साइन है, u और v मेथड लगा दें कि y इज इक्वल्स टू प्लस v, डिफरेंशिएट कर दीजिए. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स. ओके, एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1. अब एक एक करके डिफरेंशिएट कर दें कि नाउ u इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, taking log on both the sides. So log u is equals to sin x into log x. डिफरेंशिएट कीजिए 1 बाई u बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. sin x और डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x एंड प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x की वैल्यू ट्रांसफर कीजिए. सो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u टाइम्स sin x डिवाइडेड बाई x एंड प्लस cos x into log x, right? This is, और u की वैल्यू क्या है? x to the power sin x, है ना, into, अब यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं क्योंकि बेस आपका x का बेस हो जाएगा, तो x LCM ले लिया, तो ये हो गया sin x प्लस x टाइम्स cos x log x. ओके, और ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो x to the power sin x माइनस 1 into sin x प्लस x cos x log x, क्योंकि आपके बुक में आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, राइट? तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी du बाई डी एक्स की. अब लेके चलते हैं कि v इज इक्वल्स टू साइन एक्स दी पावर cos x. So taking log on both the sides, so log v is equals to cos x and log of sin x, and now differentiate with respect to x on both the sides. So 1 upon v and dv by dx is equals to, प्रोडक्ट रूल लगाइए, cos x इस log का हो गया 1 upon sin x और sin x का हो गया cos x एंड प्लस log sin x और x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x. ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो ये हो गया आपका कि dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v टाइम्स, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो cos स्क्वायर x या cos बाई साइन कॉट कर लेते हैं इसको, लेकिन फायदा कुछ होगा ये देख लेते हैं, नहीं होगा तो cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, या cos बाई साइन कॉट कर लीजिए, चॉइस इज योर्स. आंसर रिमेन सेम, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? तो इसको लिख दिया गया cos x इंटू कॉस बाई साइन cot x एंड माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x. ठीक है, और v की वैल्यू डाल दीजिए, साइन x होल टू दी पावर cos x इंटू cos x cot x एंड माइनस साइन x एंड लॉग ऑफ साइन x. ठीक है, log of sin x. So from first dy by dx दोनों की वैल्यू डाल देते हैं फर्स्ट में, तो dy by dx du by dx की वैल्यू आई है आपकी x to the power sin x minus 1 into sin x plus x cos x log x. ये वैल्यू हो गई du by dx की, और dv by dx की वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया sin x to the power cos x into cos x into cot x minus sin x into log of sin x. Okay, and this is the final result, final answer of this question number 9. Okay, है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक ही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है. नाउ अगेन 10th क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है. 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि x टू दी पावर cos x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग यूवी मेथड लगा देते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर cos x, है ना, और चलो u और v ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं, इसको u और इसको v मान लें कि लेट y इज इक्वल्स टू
plus v. So dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. Put it number 1. अब एक एक करके सॉल्व करें. u is equals to x to the power cos x. log लगा लीजिए. Taking log on both the sides. Log u is equals to cos x into log x. डेरिवेटिव करें 1 by u by dx. प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए. cos x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x and plus log x and derivative of cos x minus sin x. So du by dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी? cos x और प्लस माइनस माइनस, और मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ चूंकि x टू दी पावर cos x में जाएगा ये, तो माइनस x sin x इंटू लॉग x डिवाइडेड बाई x और इंटू, और u की वैल्यू डाल दीजिए. की वैल्यू क्या हो गई आपकी? x टू दी पावर cos x, है ना. और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन मैं, हो सकता है कि आपके बुक में आंसर इस फॉर्म में दे रखा हो, x sin x log x अपॉन x, और इस x का पावर 1 है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं. तो x टू दी पावर cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस x sin x log x. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई dx. अब v निकाल लीजिए. तो v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब आपके ऊपर है, यहाँ आप क्वोशिएंट टूल भी लगा सकते हैं और लॉग भी लगा सकते हैं. चॉइस इज योर्स. ओके, तो मैं लॉग लेके कर रहा हूँ कि लॉग v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना. डिवीजन का साइन था इसलिए माइनस हो गया. और डिफ्रेंशिएट कर दें 1 बाई वी dv बाई डी एक्स. इस लॉग का हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0. ओके, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगेन 2x एंड हो गया. सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ठीक है 2x कॉमन आ जाएगा. चलिए निकाल देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू v, और v की वैल्यू डाल दीजिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम हो गया. तो दिस इज 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट. ये आ गया आपका, ओपन कर लीजिए इसको. तो 2x क्यूब माइनस 2x एंड माइनस 2x क्यूब, एंड दिस इज अगेन माइनस 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज होल स्क्वायर. दिस इज प्लस माइनस कैंसिल आउट. तो फाइनली माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. और अगर क्वोशिएंट टूल लगाना है तो क्वोशिएंट टूल लगा दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा उससे. ठीक है. सो फ्रॉम फर्स्ट तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस x sin x log x, है ना. ये वैल्यू हो गई आपकी इसकी du बाई डी एक्स की, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई है. बीच में प्लस साइन है, सो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, आ रही है बात समझ में. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th question. This is also important question, right? So 11th question is x cos x, बल्कि ये very important question है. x cos x whole to the power x and plus x sin x whole to the power 1 by x. This is the question. Okay. तो uv मेथड लगाएं इसमें भी. y is equals to 2 plus v ले लेते हैं भाई.
पूरे को u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, u प्लस v हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू u बाई dx प्लस बाई dx एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1. ओके, तो एक एक करके लेते हैं कि u इज इक्वल्स टू x cos x होल टू द पावर x, taking log on both the sides, log u is equals to x log of x cos x and plus नॉट प्लस, log की प्रॉपर्टी लग गई. अब डिफरेंशिएट कर लीजिए. अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तीन पहले दिन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 बाई यू बाई डी एक्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्स इनडायरेक्ट वे में करूंगा, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एंड प्लस log of x cos x into d by dx of x. So 2 by dx is equals to टाइम्स, और अब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, x इंटू इस log का कर देंगे तो 1 अपॉन x cos x, ठीक है. अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos का हो गया माइनस साइन x और प्लस cos x और x का डेरिवेटिव हो गया 1. ठीक है, ये स्टेप जरा ध्यान से. ओके, एंड प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो log ऑफ x cos x, ठीक है. u की वैल्यू भी रख देते हैं, तो u की वैल्यू क्या हो गई, x cos x होल टू दी पावर x इनटू दिस x एंड x कैंसिल कर लीजिए, ठीक है. तो ऊपर क्या हो गया आपका, माइनस cos x, है ना, पहले ये इसको लिख देते हैं cos x और माइनस x sin x एंड डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x और प्लस log ऑफ x cos x. अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x cos x है, ये बेस अलग है, ये अलग है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं हम लोग. और अब हम लोग v को लेके चलते हैं कि v इज इक्वल्स टू x साइन x की पावर 1 बाई x, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log v इज इक्वल्स टू 1 बाई x log ऑफ x साइन x, ठीक है ना. तो 1 बाई v dv बाई dx. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, पहले इसको कर देता हूँ, इस log का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x साइन x हो गया, ठीक है भाई. और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x एंड प्लस साइन x इंटू 1, राइट. यहाँ लग इसका हो गया, और प्लस log ऑफ x साइन x और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो dv बाई dx की वैल्यू आ गई आपकी e टाइम्स, ठीक है, क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन x एंड प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड log ऑफ x x साइन x, है ना. ये रिजल्ट आ गया आपका log ऑफ x साइन x. और की वैल्यू डाल दीजिए, अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है तो एलसीएम लेकर के कॉमन निकालना है निकालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए. ये हो गया आपका x साइन x होल टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x माइनस log x साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. और अगर चाहते हैं तो यहाँ पे सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक साइन कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन कोसिकेंट हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दीजिए. तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो गया, y बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स होल टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ठीक है, एंड प्लस log x
into cos x. This is the value of u by dx, or dv by dx plus v times x sin x whole to the power 1 by x into x cos x plus sin x divided by x square sin x minus log x sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। अगर आप चाहें तो यहाँ सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि कॉस बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और प्लस ये, और उसी तरह से यहाँ लगा दीजिए सेपरेशन, और नहीं तो छोड़ दीजिए। ओके, गॉट इट। तो नाउ द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज, क्या कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है कि x टू दी पावर y, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखने में क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, बट सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका थोड़ा बड़ा होगा। अगेन u और v मेथड लगा दें कि u प्लस v इज इक्वल्स टू 1, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लीजिए। तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0, एंड पुट इट रिजल्ट नंबर 1। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं कि u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log ऑफ u इज इक्वल्स टू y log x, तो 1 बाई u बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एंड प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टाइम्स y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई, की वैल्यू क्या है आपकी x टू दी पावर y। ठीक है, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो x इन एलसीएम हो गया, तो y प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू वाई बाई डी एक्स, और इस x का पावर ऊपर ले लीजिए, तो x रेज टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब v को सॉल्व कर लीजिए कि v इज इक्वल्स टू y टू द पावर x, again taking log on both the sides, log v equals to x log y, so 1 upon v and dv by dx, apply the product rule, x log v का हो गया 1 upon y, और y का हो गया आपका dy by dx, and plus log y into 1, तो dv by dx is equals to d times x upon y और dy by dx and plus log y। ठीक है, y v की वैल्यू डाल दीजिए, y टू दी पावर x, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, y एलसीएम हो गया, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई। दिस कैन बी रिटन एज y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो u प्लस वी है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई कि x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग y इज इक्वल्स टू। लेकिन अभी तक हमारा सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। तो अब हमें ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओपन करके लाइक टर्म्स कर लें, तो ये हो गया एक्स रेज टू वाई माइनस 1 इंटू वाई एंड प्लस एक्स रेज टू वाई माइनस 1, और यहाँ पे पावर 1 है, तो वाई माइनस 1 प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ध्यान से समझ में आई बात। और प्लस इसको ओपन कर लीजिए, तो वाई एक्स इंटू वाई टू दी पावर एक्स माइनस 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स,
एंड प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू दी पावर x हो जाएगा, कि -1 और +1 कैंसिल हो गया, इंटू लॉग y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दें और बाकी टर्म को ट्रांसफर कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, ये हो गया x टू दी पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू विथ माइनस साइन, और ये हो जाएगा y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 और प्लस y टू दी पावर x लॉग y, है ना, क्योंकि इधर 0 था, मैंने दोनों टर्म को ट्रांसफर कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x इंटू लॉग y एंड होल डिवाइडेड बाई x टू दी पावर y लॉग, यहाँ पे क्या छूट गया भाई, x टू दी लॉग x, है ना, x टू दी पावर y log x plus x y to the power x minus 1 and this is the final answer of this। ठीक है ना, क्वेश्चन तो देखने में लग रहा था कितना छोटा सा है, बट देखिए प्रोसेस इसका। ओके, इन द सेम वे you can solve question number 13। so this question number 13 I am leaving for you। now I am going to question number 14। okay, 13 सेम है बिल्कुल जैसे पहले अभी किया था, मैं 13 ना करके क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, cos x होल टू दी पावर y इज इक्वल्स टू cos y होल टू दी पावर x। ठीक है ना, तो इसको u मान लें और इसको v मान लेते हैं, तो u इज इक्वल्स टू v, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है भाई, है ना, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। अब नो u इक्वल्स टू cos x दी पावर y, टेकिंग log on both the sides, log u is equals to y log cos x। डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 बाई u बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टू लगाए, y अपॉन log x का हो गया 1 अपॉन cos x, और cos x का हो गया माइनस साइन x एंड प्लस log x, और y का हो गया y बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स माइनस y साइन x एंड डिवाइडेड बाई cos x एंड प्लस log x इंटू डी वाई बाई एक्स, और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू क्या है आपकी, cos x होल टू दी पावर y, है ना, तो एलसीएम यहाँ पर भी ले सकते हैं, ले लेंगे, तो लेना चाहें तो ले लेंगे, या बाद में देख लेते हैं क्या फॉर्म आ रहा है आपका। तो माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, हालांकि एलसीएम लेकर के हम लोग लिख सकते हैं वाई रेस टू माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। ठीक है, या अगर अभी लेना है अभी ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि cos x होल टू दी पावर y माइनस 1, और एलसीएम हो गया आपका, तो ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स टू वाई बाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं v, कि v इज इक्वल्स टू कॉस वाई होल टू दी पावर x, so taking log on both the sides, so log v is equals to x log of cos y, so 1 by v dv by dx is equals to x, इस log का हो गया 1 by cos y का हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन y, और y का हो गया dy by dx एंड प्लस log cos y इंटू x का डेरिवेटिव 1। सो dv by dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी, e टाइम्स माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉस वाई, चूंकि v की वैल्यू आपकी कॉस वाई के बेस लगा हुआ है, तो कॉस वाई होल टू दी पावर एक्स
और एलसीएम ले लिया आपने cos y, ठीक है भाई, तो माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस कॉस वाई इंटू लॉग कॉस वाई. Okay, so this can be written as cos y whole to the power x minus 1 into minus x sin y into dy by dx plus cos y into log cos y. Okay, अब इन दोनों की वैल्यू को फर्स्ट में ला करके रख दीजिए. सो फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है कि cos x होल टू दी पावर y माइनस 1 इन माइनस वाई साइन x प्लस cos x इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया cos y होल टू दी पावर x माइनस 1 इंटू माइनस x साइन y and sin y by dx and plus cos y and log cos y. ठीक है, अब ब्रैकेट को तो ओपन करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई डी एक्स आपको निकालना है. फिर लाइक टर्म्स करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर y माइनस 1 एंड प्लस cos x to the power y minus 1 into cos x log x and dy by dx is equals to, को भी ओपन कर लीजिए. तो ये हो गया आपका ये माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स, चलो डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई होल टू दी पावर एक्स माइनस 1 and plus cos y whole to the power x minus 1 into cos y and log of cos y. ठीक है, अब क्या करें, लाइक टर्म्स कर दीजिए. dy बाई डी एक्स वाला आपका ये टर्म है और dy बाई डी एक्स ये टर्म है. तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हुए मैं इस टर्म को इस साइड लेकर के आ रहा हूँ लेफ्ट साइड में. तो dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये बच गया आपका cos x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू कॉस एक्स और log x, और ये इधर आकर के हो गया प्लस x साइन y इंटू कॉस वाई होल टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको इधर लेकर के आइए, तो ये हो गया cos y टू दी पावर x माइनस 1 एंड cos y एंड log cos y, और ये माइनस इधर आके प्लस में आ जाएगा. तो प्लस y साइन एक्स प्लस y साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू दी पावर y माइनस 1. अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिएगा कि दिस डिवाइडेड बाई, ओके, ठीक है ना. देयरफॉर y बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर कर दीजिए कि cos y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू cos y log cos y एंड प्लस y sin x इंटू cos x होल टू दी पावर y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई, इस टर्म को इधर ले आइएगा और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना. अब इस टर्म को सिर्फ इधर लाना है, मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया. इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा टर्म आपका इधर आ जाएगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. तो 15 क्या कहता है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू दी पावर एक्स माइनस वाई. अब यहाँ पे लॉग लगा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना. तो डायरेक्ट कर लें, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दें और यहाँ एक्सपोनेंशियल वर्ड लगा लेते हैं. ये हो गया कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए. तो ये एक्स वाई का हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इंटू 1, और ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई का ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई. तो ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई. ठीक है भाई, और
x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y का हो गया dy बाई x, क्योंकि dy बाई dx आपको निकालना है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं x dy बाई dx प्लस y, और को मल्टीप्लाई कर दे दीजिए e टू दी पावर x माइनस वाई और माइनस e टू दी पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लाइक टर्म्स कर लीजिए। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, मैंने कॉमन निकाल दिया और इधर x और ये इधर आके प्लस हो गया e टू दी पावर x माइनस वाई, राइट, और ये हो गया e टू दी पावर x माइनस वाई और ये इधर आकर के माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस e पावर x माइनस वाई, है ना। हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब आप बुक से आंसर कंपेयर करोगे तो बुक वालों ने क्या कर दिया कि e टू दी पावर x माइनस वाई की वैल्यू xy रख दी, ठीक है। तो इसको लिख दिया xy माइनस वाई अपॉन x प्लस एक्स वाई, और यहाँ से y कॉमन निकाल के x माइनस वन और यहाँ से x कॉमन निकाल के 1 प्लस वाई, ये आपके बुक में आंसर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि 16th क्वेश्चन, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके हेंस फाइंड एफ डैश वन। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया सर, एफ डैश एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉग लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि बगैर लॉग लगाए हुए तो ये होगा नहीं, तो इससे पहले लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ओके। सो लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स, या अगर इसको वाई मानते हैं तो लॉग वाई, बात बराबर ही है, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log of 1 plus x to the power 4 and plus log of 1 plus x to the power 8, 1 plus x to the power 8, log of 1 plus x to the power, ओके। तो जैसे log of fx का मतलब क्या, अगर y मान लिया तो log y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से इसको लिखेंगे कि 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश, है ना, लॉग एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और यहाँ हो गया 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 और एक्स टू दी पावर 8 का क्या हो गया 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू, है ना, एफ एक्स इधर आ गया ना, एफ एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and plus 4x cube upon 1 plus x to the power 4 and plus 8x to the power 7 upon 1 plus x to the power 8, और fx की वैल्यू डाल देते हैं। तो f डैश x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस 8x7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द f डैश 1, यानी जहां पर x है वहां पे हम लोग 1 रख देते हैं, राइट। तो द वैल्यू ऑफ f डैश 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो गया भाई, और ये भी 1 हो गया तो इंटू 2 हो गया, ये भी आपका इंटू 2 हो गया, ये भी आपका इंटू हो गया ना, 1 प्लस 1 टू दी पावर 8, राइट, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, एंड प्लस 4 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड प्लस 8 अपॉन 2 हो गया, राइट। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16 हो गया ये, इंटू 1 बाई 2
+1, या चलो आप सीधा सीधा एलसीएम लेकर के कर लो, डायरेक्ट कर लो। तो ये तो 16 हो गया, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 2, ये हो गया 1 +2 +4 +8, है ना, ये कैंसिल कर दीजिए, 2 8 16, तो 8 इंटू 8 4 14 15 हो गया, है ना भाई, 3 + 4 7 + 8 15, और 15 8 120, so this is the value of f dash 1. Okay, now the next question is question number 17. Question number 17, and the 17th question is differentiate. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 8 इंटू एक्स क्यूब + 7x + 9 इन 3 वेज। 3 वेज का मतलब क्या कहता है कि पहले तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहले प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए कह रहा है। सेकंड कहता है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल बना लें। और थर्ड में कहता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाइए। फिर लास्ट में पूछता है कि डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, सो आफ्टर द सॉल्यूशन वी विल कम टू द कंक्लूजन। ओके, सबसे पहले कहता है बाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट पार्ट इज बाई प्रोडक्ट रूल। तो y is equals to x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9 by product rule, हो ना। फर्स्ट वन इज बाई प्रोडक्ट रूल। हम पहले प्रोडक्ट रूल लगा करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो dy by dx is equals to x square minus 5x plus 8 into d by dx of x cube plus 7x plus 9 and plus x cube plus 7x plus 9 into d by dx of x square minus 5x plus 8. Okay, so this is x square minus 5x plus 8, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, 7x का 7 हो गया और इसके 0 हो गया, एंड प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एंड माइनस 5x का 5 और 8 का 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x टू द पावर 3 एंड प्लस 24x स्क्वायर, अब 7 से कर देते हैं, तो 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56, और इधर भी मल्टीप्लीकेशन लीजिए, ये हो गया 2x टू द पावर 4 प्लस 14 एक्स स्क्वायर और प्लस 18x, माइनस 5 से कर दीजिए, तो माइनस 5x क्यूब एंड माइनस 35x और माइनस 45। तो फाइनली क्या हो गया आपका 3x टू द पावर 4 एंड 2x टू द पावर 4, दैट इज 5x टू द पावर 4 and minus 15x cube and minus 5x cube, this is minus 20x cube, ठीक है भाई, और प्लस 24x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, 31x स्क्वायर प्लस में ये आ गया, और प्लस 14x स्क्वायर, तो 31 प्लस 14 कितना हो गया 45, है ना, प्लस 45 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस 35x और माइनस 35x माइनस 70 और प्लस 18, तो माइनस 70 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 52 ना, हाँ 52, तो साइन हो जाएगा माइनस 52x हो गया, और प्लस का 56 और माइनस 45 यानी कि हो जाएगा आपका प्लस का 11। तो दिस इज द आंसर बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि बाई अप्लाइंग द सिंगल पॉलिनोमियल फंक्शन, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो ये हो गया x टू दी पावर 5, पहले मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 5x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब, अब 7x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस 7x क्यूब और माइनस 35x स्क्वायर एंड प्लस 56x, ठीक है, अब 9 से कर दीजिए, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 72, सिंप्लीफाई करें पहले, x टू दी पावर 5
और 4 का पावर भी आपका अकेला ही है, -5x टू द पावर 4। क्यूब आपके पास कहाँ पे क्यूब है ये देख लीजिए। हाँ, कहाँ पे क्यूब आ गया भाई? एक तो आपका हो गया 8x क्यूब हो गया और 7x क्यूब है ना, ठीक है। तो प्लस 15x क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ है और यहाँ है, तो -35 और +9x², कितना हो जाएगा? -26x² हो गया और 56 और -45 यानी कि +11x हो गया और +72 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dy/dx, इसका डेरिवेटिव हो गया 5x टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव हो गया -20x³, इसका डेरिवेटिव हो गया +45x² है ना, 3x³ का 3x² मल्टीप्लाइड बाई 15 एंड -52x और +11 और ये 0। तो आंसर इज कमिंग रिमेन सेम, राइट? इज द सेकेंड फॉर्म। एंड द थर्ड इज बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। थर्ड इज बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो थर्ड ले लेते हैं, थर्ड पार्ट। y इज इक्वल्स टू x² -5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9। तो डिफरेंशिएशन लॉग लगाइए, log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये? log ऑफ x² -5x + 8 एंड प्लस log ऑफ x³ + 7x + 9। ओके, सो 1/y इज टू dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x² -5x + 8 और x² का डेरिवेटिव 2x -5, ये 0 हो गया एंड प्लस 1/x³ -7x + 9 और x³ का डेरिवेटिव 3x² एंड -7, इसका 0। सो dy/dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स 2x -5 अपॉन x² -5x + 8 एंड प्लस 3x² -7 अपॉन x³ -7x + 9। ओके, सो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल्स टू x² -5x + 8 इंटू, ठीक है, इंटू x³ + 7x एंड +9, ठीक है भाई, और इंटू 2x -5 अपॉन x² -5x + 8 एंड प्लस 3x² -7 अपॉन x³ -7x + 9। अब मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, so this is 2x -5 into x³ -7x + 9 and plus 3x² -7 into x² -5x + 8 और LCM और ये मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इन द लास्ट वी विल राइट yes, they will give the same answer. Okay, got it? Very good. And the last question of this exercise, that is question number 18. Again, it is a very simple question. What is the question? A, if u, v and are the function, then show that d/dx of u w is equals to du/dx plus v to w and plus u times d by x into w and plus into e into w by x। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, यहाँ पे लगा देते हैं रूल, वी विल गेट द लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ, है ना, u e w, प्रोडक्ट रूल सीधा लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं भाई, तो ये हो गया, फर्स्ट को डेरिवेटिव कर दिया du/dx और इंटू v इंटू डब्ल्यू। अब v को डेरिवेटिव कर देंगे तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू और w का डेरिवेटिव कर देंगे तो u एंड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस
only solution. And okay, so I think this question is clear to you, this exercise is clear to you. So if you are having any doubt, please write in your comment section. Okay, thank you very much. और फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही, क्लास पसंद आ रही है, तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक